Hi everyone, welcome you back in this physics video. And today in this video we will learn that how we can convert a galvanometer into ammeter. So first to understand that what a galvanometer does and what a ammeter does, and thereafter how we can do this conversion. So over here galvanometer, that it detect the current. Okay, so it is highly sensitive, so it detect the current in the circuit, and over there it get damaged at हाई करंट, डैमेज्ड एट हाई करंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो मिनट करंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर हाई करंट उस गैल्वेनोमीटर को दे दें तो वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसमें जो हेयर स्प्रिंग था वो डैमेज करता है। ठीक है, नाउ ओवर देयर एमीटर की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफ एमीटर, तो एमीटर हमारे पास this is that device which is used to measure the current. How much is that current? Measure the current in the electric circuit. ओके, सो ओवर देयर इससे हमने क्या करना है, करंट को मेजर करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना करंट है। ठीक है, सो दैट इट कैन मेजर हाई करंट। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, हाई करंट्स को मेजर कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन ओवर देयर कि हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर है वो तो हाई करंट पे डैमेज हो जाता है, लेकिन जो एमीटर है उससे क्या किया जाएगा, हाई करंट मेजर किया जाएगा। ओके, सो हाउ वी कैन अचीव दिस वन, तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट the current for which this galvanometer will show full deflection. Let this current is Ig. Ig is what? That current for which galvanometer shows full deflection. ओके, सो ओवर देयर एज इट इज़ नोन टू अस कि हमारे पास क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा हाई करंट होगा तो जो कॉइल है हमारे पास वो डैमेज हो जाती है गैल्वेनोमीटर की। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें मैक्सिमम कितना करंट आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो करंट जो मैक्सिमम होगा तो वो क्या होगा, जिसके लिए वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसलिए इस करंट को हमने क्या बोला, आई जी करंट बोला। दिस इज आई जी करंट। एंड दिस करंट ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये करंट बहुत स्मॉलर होगा। एंड लेट दैट करंट विच वी वांट टू मेजर इट इज आई। ठीक है, और इधर वी कैन से इट इज आई द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, so we want to convert this galvanometer in that ammeter which is having its range that can measure the current of I एम्पियर। ठीक है, तो आई एम्पियर का मतलब हो गया जैसे वो 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 30 एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जो हमारे पास करंट है उसको मेजर करने के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो कुछ माइक्रो एम्पियर का होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे उस एमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कुछ एम्पियर्स के अंदर करंट को मेजर कर सकता है। ओके, सो फॉर दिस वी विल अंडरस्टैंड अ सेटअप एंड देयर आफ्टर इट विल बिकम easier for us to come overcome this situation. Let us to understand first this what is full deflection current through galvanometer. So for this purpose, as we are having, this is the scale of the galvanometer. Here it is the scale of the galvanometer and this is the pointer. Let this pointer is at this position when no current passes through it. Okay, now over there when we will pass the current through this galvanometer, so its pointer will change its position. Okay, so now when the maximum current passes through it, so over there it changes its position, this pointer changes to the maximum position over here. Okay, so therefore that current, when this pointer will reach to this maximum on the scale, so that current will become its full deflection current. And if the current will be supplied after of this, then this galvanometer will damage. For example, here it was 0 that ampere
while over here that it is going to show it is 1 ampere. Okay, so how much is that current for which it will show the full deflection? So that it will be 1 ampere of the current, and if the current which will pass through the galvanometer it exceed 1 ampere, so it will damage. So this is the meaning for full deflection current of galvanometer. So here this galvanometer shows full deflection in this example for 1 ampere of the current. Okay, now let us to understand that how we are going to converting this galvanometer into this ammeter. So over here we are supposing that there is a road which is going to the company. This is a road which is going to the company. Here this is company. Now the company wants to know over here how many vehicle are coming to the company. ठीक है, तो कंपनी ये चाहती है कि वो उन व्हीकल्स को काउंट करे जो कंपनी में आ रहे हैं. सो दे सेटअप देयर ऑफिस ओवर है. तो यहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया. ठीक है, सो दे कैन काउंट दैट हाउ मेनी व्हीकल्स आर कमिंग टू द कंपनी. बट व्हेन द व्हीकल केम ऑन दिस रोड सो इट गेट डैमेज्ड. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड के ऊपर हुआ तो ये रोड क्या हो गया, डैमेज हो गया. सो दे मेड अ लिंक over here to the company. So this is the link road they made to the company, and along with this they made one rule. एक रूल उन्होंने बनाया that if 10 vehicle are coming on this road, अगर इस रोड के ऊपर 10 vehicle आ रहे हैं, so बिकॉज ड्यू टू ऑफ हाई ट्रैफिक दिस रोड गेट डैमेज. इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक रूल बनाया, अगर 10 व्हीकल जो है इस रोड के ऊपर आते हैं सो 1 विल पास थ्रू द ऑफिस एंड 9 विल पास फ्रॉम दिस लिंक. ओके, सो टोटल हाउ मेनी विल एंटर इन द कंपनी, दैट विल बी 10. okay, and if over there 2 vehicle will pass from the office, it means how many will reach now the company. ठीक है, अगर 2 व्हीकल जो है ऑफिस से पास होते हैं इसका मतलब टोटल कंपनी में कितने व्हीकल आ गए, सो दैट विल बी 20 नाउ. ठीक है, इफ 3 व्हीकल विल पास फ्रॉम द ऑफिस, क्योंकि रूल बनाया गया है ना कि हर जो 10 व्हीकल में से एक व्हीकल क्या होगा, ऑफिस के सामने से जाएगा. ठीक है, तो इफ 3 व्हीकल गॉन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ऑफिस, so it means that total how many reached to the company, it is 30. okay, so thus they are capable of measuring all that vehicle which is coming to the company. Now in same way we are having over here this conversion of galvanometer into this ammeter, because ये जो galvanometer है, ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट पास कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. ठीक है, इस रोड की तरह ये क्या हो जाएगा, डैमेज. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली इसमें से उतना ही करंट सेंड कर सकते हैं जिसके लिए वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे सकता है. सो देयरफॉर हियर हाउ मच करंट कैन बी पास थ्रू दिस वन, इट इज this current for which it will show maximum deflection, full scale deflection show करेगा. okay, so then what to do with the rest current. तो जो रेस्ट करंट है दैट वी हैव टू पास, ये क्या करना पड़ेगा आपको, उसको लिंक रोड से पास करना है. ठीक है, तो इसलिए ये लिंक रोड से उसको जो बाकी करंट है उसको पास किया. ठीक है, सो दिस इज दैट वी आर हैविंग ओवर हेयर थ्रू दिस लिंक रोड. नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ओवर हेयर अ लो रेजिस्टेंस. दिस इज in this parallel combination. okay, so this low resistance, why it is used. तो लो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, जो करंट हमारे पास है वो हमेशा ही उस पाथ से फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर करंट किस में से पास करेगा, इस लो रेजिस्टेंस से पास करेगा. एंड दिस लो रेजिस्टेंस ओवर हेयर इट इज़ नोन एज शंट. ठीक है, now over here let us to have that current which is coming. ये वो करंट है जिसको हमने क्या करना था, यहाँ पर मेजर करवाना है. ठीक है, सो दिस इज दैट रेंज ऑफ दैट एमीटर. ठीक है, तो कितना करंट आपने मेजर करवाना था, आई. लेट अस टू टेक इट विद द एग्जांपल. जैसे एग्जांपल हमारे पास कि ये जो गैल्वेनोमीटर था ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, ओनली 1 एम्पियर करंट ही पास कर सकता है. ठीक है, सो इट मीन्स ओवर देयर
अगर मुझे इससे कितना मेजर करवाना था 10 एम्पियर, सो देन ओवर हेयर विद दिस सेटअप, इस सेटअप से क्या होगा, हमारे पास 1 एम्पियर इसको दे देंगे और जो 9 एम्पियर करंट है वो क्या करेंगे, हम इस शंट में से पास कर देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर जो टोटल हमारे पास जैसे यहाँ पर कंपनी में टोटल जो पहुँच रहा था वो कितना हो जाता था, तो हमने जो रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हर 10 व्हीकल में से एक कंपनी के सामने से पास करता था और 9 जो थे दूसरे से चले जाते थे, तो इसलिए कितने टोटल रीच करते थे, 10 जो थे कंपनी में आते थे। सो सिमिलर ओवर है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम 1 एम्पियर ही पास कर सकता है। ठीक है, तो बाकी 9 कहाँ से क्रॉस कर रहा है, शंट से, इसलिए टोटल कितना करंट जो है ये मेजर हो रहा है अब। सो दिस विल कम देन दिस इज ऑफ 10 ampere of the current we can measure. Okay, so therefore here I is said to be the range, ठीक है, of that ammeter, तो इसलिए हमारे पास I जो है एमीटर की रेंज बन जाती है। सो दिस इज द सेटअप विच इज नीडेड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। So thus we come to know over here कि if we want to measure convert this galvanometer into ammeter, we have to connect a low resistance in parallel to this galvanometer. So this low resistance in parallel, it is known as shunt. Okay, now what is the use of shunt? तो शंट हमारे पास क्या है, वन थिंग दैट इट इज लो रेजिस्टेंस, सेकेंड थिंग दैट इट इज कन्वर्टिंग this galvanometer to ammeter, तो ये क्या करता है, galvanometer को ammeter में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ दैट शंट विच इज यूज इन दिस वन। नाउ ओवर हेयर जो हमारे पास करंट विच वी वांट टू मेजर विद दिस एमीटर, ठीक है, तो that was I. So when this I current reached to this junction, so here only Ig current for which galvanometer shows full deflection, this will pass through it and remaining current I minus Ig will go through this shunt. Okay, so this is that current which is passing through that shunt. Now you will find over there ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, तो इन दो पॉइंट में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो शंट और गैल्वेनोमीटर है ये क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, सेम, तो जितनी वोल्टेज शंट के अक्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, उस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगी। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट। ठीक है, तो शंट के अक्रॉस जितने पोटेंशियल डिफरेंस है, सो देयरफॉर हाउ मच इज दैट वन, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से, करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो इट इज आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी ले लिया, नाउ विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, तो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हाउ मच इज द करंट थ्रू इट, इट इज आई माइनस ऑफ आई जी एंड दैट दिस शंट, सो that resistance, low resistance, it is I minus Ig into S. So now over here if we want to know how much that shunt we need to use so that this galvanometer can be converted into ammeter, so therefore that can be calculated from here. This shunt will be equal to, take all these to the divide of this one, it is Ig G upon में I minus of Ig. Okay, this is that shunt. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो कि कितना शंट उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हो जिससे आप उसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट दैट रेजिस्टेंस शंट इन द पैरेलल विच इज़ कनेक्टेड ओवर देयर। नाउ जब ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर एमीटर में हमने चेंज किया तो क्या किया था, जो शंट था वो पैरेलल में यूज़ किया। ठीक है, तो इससे किस में बदल गया था, एमीटर में। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर नाउ व्हाट इट विल बी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, तो उस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या बना हमारे पास, सो देयर इट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, सो यू विल फाइंड ओवर देयर दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस विच आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जी यहाँ पर मतलब कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसलिए क्या बन जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोडक्ट अपॉन में
sum. This is GS upon में G plus S. So you will find over here कि हमारे पास 10 resistance of ammeter that it must be low. ठीक है, तो हमारे पास ये जो एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये करंट खुद में से पास करता है और उतना ज़्यादा करंट ये मेजर कर सकता है. नाउ ओवर हेयर वी हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग. जो गैल्वेनोमीटर था उसका रेजिस्टेंस जो था वो शंट से क्या होता है ज़्यादा, इसीलिए तो ज़्यादातर करंट क्या कर रहा था, शंट से पास हो रहा था. ठीक है, सो हेयर दिस जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज मच मोर ग्रेटर दैन दैट ऑफ this shunt. So therefore effective resistance that which we can say of that ammeter will come, it is this GS/G. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के जो ऐड है वो हमारे पास G प्लस S जो है वो नियरली G बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस. नाउ इन टर्न यू विल गेट दैट इट इज़ इक्वल टू S. ठीक है, अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर क्या होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, वट वी कैन नॉट मेक सच अ एमीटर विच विल हैव इट्स रेजिस्टेंस जीरो because there we need a resistance of negligible value, so such a low resistance cannot be generated. So therefore that we can't make this type of ideal ammeter. Now over here one more benefit of using this shunt, that it is we can change the range of ammeter. ठीक है, तो जो डिजायर्ड रेंज का जो एमीटर है उसको बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, शंट का यूज़ कर रहे हो. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या कर रहे हो, शंट का यूज़ कर रहे हो. शंट क्या है, एक लो रेजिस्टेंस है, और हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर. तो उस गैल्वेनोमीटर के ये पैरेलल में होती है. ओके, सो that's all from my today's video. Thank you for watching this one. So before leaving this, I'm going to tell again, S is shunt which is in parallel, that low resistance. Ig is that full scale deflection which is given by that galvanometer. ये वो करंट है जिसके लिए वो फुल स्केल देगा डिफ्लेक्शन में. G is that resistance of this galvanometer, and I is that range of ammeter that we want to measure with the help of it. तो एमीटर के हेल्प से हम जो मैक्सिमम करंट हम वहाँ पर मेजर करवाना चाहते हैं. सो इट इज़ रेंज ऑफ एमीटर and Ig ऑलरेडी known to us. Okay, so thanks for watching it.